Welcome, dear students. This is our fourth lecture on Newtonian mechanics. और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे about frames of reference and then the Galilean transformation. तो frames of reference को हम दो categories में classify करते हैं. Number one is inertial frame of reference, and number two is non-inertial. तो इनके बीच में फर्क क्या है? If we have got a frame of reference like this, और इसमें कोई body है, there is some body in this frame of reference, और हम इस body पे मेजर करते हैं कि इस पे फोर्स कितना है. तो we find the net external force on the body is 0. और उसके बाद हम इस बॉडी की एक्सेलरेशन मेजर करते हैं and we find the acceleration is also 0. I repeat, किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम एक बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स मेजर करते हैं and we find that the net external force on the body is 0. उसके बाद हम इस बॉडी की एक्सेलरेशन मेजर करते हैं and we find the body has got 0 acceleration. Then the frame is called inertial frame. अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा हो कि उसमें किसी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 एक्ट हो रहा हो एंड उस बॉडी की एक्सेलरेशन भी 0 हो, तो उस फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम कहते हैं. तो अगर इस बॉडी की एक्सेलरेशन 0 है, if the acceleration is 0 and acceleration is the rate of change of velocity with respect to time, so that means change in velocity is 0, so velocity is a constant. अच्छा, ये जो constant है, now this constant can be a 0 value or it can be a non-zero constant value. So when acceleration is 0, that means velocity is constant. तो velocity constant का मतलब है कि या तो ये 0 भी हो सकता है and that means then the object is at rest. Constant का मतलब है कोई non-zero value भी होगा constant. So that means जब non-zero होगा तो उसको हम uniform motion कहेंगे. तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम सिंपली इनर्शियल फ्रेम भी कहते हैं, गैलीलियन रेफरेंस फ्रेम भी कहते हैं, इनर्शियल स्पेस भी कहते हैं. दीज आर आल्सो द नेम्स फॉर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. एक और डेफिनेशन हम इनर्शियल फ्रेम की ये दे सकते हैं कि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में law of inertia holds good, so that frame will be called an inertial frame. The law of inertia was given by Galileo. It was given by Galileo, and it states that every object is unable to change by itself. It is state of rest or of uniform motion. Galileo ने जो law of inertia put forth किया, ये कहता है कि अगर कोई object rest में है तो ये खुद ही motion में नहीं आ सकता है, या अगर कोई object uniform motion में है तो ये अपनी speed कम या ज्यादा खुद नहीं कर सकता, ये अपनी डायरेक्शन खुद चेंज नहीं कर सकता,
ये मोशन से रेस्ट में खुद नहीं आ सकता. इट नीड्स फोर्स बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी. एक बॉडी खुद की स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं कर सकती, खुद की स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकती. यू नीड सम अदर बॉडी जो इस बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करके इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन चेंज करे. तो ये जो इनएबिलिटी है, द प्रॉपर्टी दैट अ बॉडी इज अनएबल टू चेंज बाय इटसेल्फ, कि खुद ये अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं कर सकती, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन चेंज नहीं कर सकती. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया. This property is called inertia. It comes from a Greek Latin word iners. Iners is a Latin word. You will find lot of Latin and Greek words in physics. तो जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, it means laziness. तो there are three types of inertia. One is inertia of rest, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो it cannot by itself go into motion. Then there is another inertia of motion, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट along a straight line मूव कर रहा है तो ये अपनी स्पीड कम या ज्यादा खुद नहीं कर सकता, ये मोशन से रेस्ट में खुद नहीं आ सकता. And then there is the third inertia, that is the inertia of direction, that if an object is moving along a straight line, it cannot change its direction by itself. तो आपने पढ़ा भी होगा 11th में कि डायरेक्शन चेंज करने के लिए, if an object is traveling along a straight line, now अगर इसको डायरेक्शन चेंज करनी है, it needs a force acting on it, that is called centripetal force. तो inertial frame is a frame के जिसमें हम बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स मेजर करें, वो हमें 0 मिले, और फिर हम उस बॉडी की एक्सेलरेशन मेजर करें तो हमें एक्सेलरेशन भी 0 मिले. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इनर्शियल फ्रेम्स की प्रॉपर्टी है, दे आर नॉन रोटेटिंग. तो अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा है जो रोटेट हो रहा हो तो वो इनर्शियल फ्रेम नहीं हो सकता. तो अगर मैं यहीं पे आपको पूछूं, इज अर्थ एन इनर्शियल फ्रेम, तो योर आंसर शुड बी नो. स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, अर्थ इज not inertial frame because earth is rotating about its axis, जिससे दिन और रात बनते हैं. न्यूटन के जो हमने प्रीवियस लेक्चर में लॉज ऑफ मोशन पढ़े, तो न्यूटन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, दे आर वैलिड ओनली इन द इनर्शियल फ्रेम्स. सो न्यूटन's first and second law, they will not be applicable in non-inertial frames. तो हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल माने? तो अगर कोई ऐसा फ्रेम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है विच इज अवे फ्रॉम ऑल स्पेस, जिसपे कोई फोर्स ही एक्सर्ट ना हो, विच इज वेरी अवे फ्रॉम अट्रैक्टिंग मैटर and attached to some fixed stars, may be taken as an inertial frame of reference. अच्छा, अब अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और हमें पता है कि ये इनर्शियल है, so this is a frame and we know that this frame of reference is inertial. अब अगर कोई एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, there is another frame of reference जिसको हम S प्राइम कहेंगे, इनर्शियल फ्रेम को S कहेंगे. तो इफ द अदर फ्रेम इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू आवर इनर्शियल फ्रेम, कि इसकी पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू आवर इनर्शियल फ्रेम चेंज नहीं हो रही, देन द सेकंड फ्रेम इज आल्सो इनर्शियल. So if we have got a frame of reference which is at rest with respect to an inertial frame, is also inertial. अच्छा, अब अगर ये मोशन में हो
The second frame is in motion, but it is in uniform motion. तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि इसकी स्पीड कांस्टेंट है और इसकी डायरेक्शन फिक्स्ड है. सो इट इज मूविंग इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट स्पीड with respect to our inertial frame. So if the second frame S prime is in uniform motion with respect to our given inertial frame, then also the second frame is inertial frame. So if we have got a frame which is either at rest or it is in uniform motion with respect to an inertial frame, so that frame is also an inertial frame. ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है? अगर हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, let us call this frame of reference S, और स्पेस में कहीं पे एक पॉइंट है, पॉइंट P, and this space, this frame of reference, इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं x, y and z. तो हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मेजर करते हैं एज पर आवर गिवन फ्रेम, और सपोजिंग हमें इसके कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं x, y and z in small letters. Then we construct another frame. We construct another frame and we call this S prime. So this is another frame S prime. तो इसका origin हम denote करेंगे O prime. Everything will be denoted with a prime. तो x coordinate will be x prime, y coordinate will be y prime, z coordinate will be z prime. तो we have constructed another frame. तो अब हम इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मेजर करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड फ्रेम S प्राइम, एंड सपोजिंग हमें इसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम. So point P, which does not change, which is at a particular position in space, तो इसकी पोजीशन या इसके कोऑर्डिनेट्स हम मेजर करते हैं एज पर फ्रेम S. तो हमें मिलते हैं x, y and z. इसी पॉइंट P के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हम मेजर करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस S प्राइम. तो हमें मिलता है x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम. राइट, वेरी इजी. अब अगर कोई इक्वेशन है जो x और x प्राइम को रिलेट करे, x prime will be x plus something. So this equation is called transformation equation. So transformation equation is an equation जो relate करती है position coordinates of a point given by two frames. अब ये जरूरी नहीं है कि पॉइंट P रेस्ट पे हो, इट कैन बी मूविंग. दिस पॉइंट P कैन बी पोजीशन, दिस पॉइंट P कैन बी इवेंट, दिस कैन बी एन ऑब्जेक्ट, इट कैन बी एन ऑब्जेक्ट मूविंग. तो कॉन्सिक्वेंटली इसकी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तो इसकी वेलोसिटी हो सकती है, इसकी एक्सेलरेशन हो सकती है, इस पे कोई नेट फोर्स हो सकता है. तो हम जो भी क्वांटिटीज ऑफ दिस P मेजर करेंगे इन वन फ्रेम, और वही प्रॉपर्टी हम मेजर करेंगे इन सेकंड फ्रेम, तो उन प्रॉपर्टीज को रिलेट करने वाली इक्वेशन को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. सो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इज एन इक्वेशन which relates two sets of coordinates of an event
in two frames of reference. अच्छा, अब अगर ये दोनों frames of reference inertial हुए, then the transformation equation is called Galilean transformation. So Galilean transformation is a special case of transformation के जिसमें हम frames of reference दोनों inertial frames लेते हैं. Okay, so we have got two frames. एक फ्रेम को हम कहते हैं S, one frame is S, another frame is S prime. तो हम एक ऑब्जेक्ट की कोई प्रॉपर्टी मेजर करें, मिसाल के तौर पे we measure acceleration of an object in frame S. Similarly, we measure acceleration of the object in frame S prime. अगर हमें ये दोनों एक्सेलरेशंस बराबर मिली, we find the same value of acceleration in frame S as well as S prime. तो ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं इनवेरिएंट, कि एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाते जाते जो फिजिकल क्वांटिटी है इसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम इनवेरिएंट कहते हैं. तो मैंने एक्सेलरेशन की एग्जांपल क्यों दी? बिकॉज एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट. अगर आप दो इनर्शियल फ्रेम्स लेते हैं और आप एक बॉडी की एक्सेलरेशन मेजर करें, चाहे आप एक फ्रेम में मेजर करें या दूसरे फ्रेम में मेजर करें, you will get the same value of acceleration. So we say that acceleration is invariant to the transformation. So there are other physical quantities like position hai. There is physical quantity position. तो अगर आप पोजीशन को मेजर करेंगे इन फ्रेम S तो आपको अलग वैल्यू मिलेगा. अगर आप उसी पॉइंट की पोजीशन फ्रेम S प्राइम में मेजर करेंगे तो आपको पोजीशन का दूसरा वैल्यू मिलेगा. सो पोजीशन डज नॉट हैव द सेम वैल्यू इन द टू फ्रेम्स. तो हम कहेंगे दैट पोजीशन इज नॉट इनवेरिएंट. इसी तरह हम आगे जाके देखेंगे कि अगर हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मेजर करें इन जनरल, अगर हम एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मेजर करें एक इनर्शियल फ्रेम में और फिर दूसरे इनर्शियल फ्रेम में, द टू फ्रेम्स विल गिव अस डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी. तो हम कहेंगे वेलोसिटी इज नॉट इनवेरिएंट टू द ट्रांसफॉर्मेशन. तो invariant applies to a physical quantity. Invariant applies to physical quantity. When a particular physical quantity has got the same value in two frames, we say the physical quantity is invariant. अगर value same ना मिले तो हम उसको कहते हैं not invariant. अच्छा, एक और टर्म है covariant. तो कोवेरिएंट जो है दैट अप्लाइज टू द लॉज ऑफ फिजिक्स. हमारे पास एक फ्रेम है S और हमारे पास एक और फ्रेम है S प्राइम. तो हम फ्रेम S में कोई लॉ ऑफ फिजिक्स देखें, मिसाल के तौर पे न्यूटन सेकंड लॉ जो है कि हमें मिलता है मास इनटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma. तो इसी तरह हम यही सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे दूसरे फ्रेम में, हमें वहां पर भी F प्राइम मिलेगा M प्राइम A प्राइम. राइट. तो हमें जो फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स पहले फ्रेम में मिला, हमें डिट्टो वही फॉर्म दूसरे फ्रेम में मिलती है. सो द लॉ ऑफ फिजिक्स डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म इन गोइंग फ्रॉम वन फ्रेम टू अनदर फ्रेम. तो ऐसे लॉ ऑफ फिजिक्स को हम कोवेरिएंट लॉ कहते हैं. तो जो टर्म कोवेरिएंट है, कोवेरिएंट
कोवेरिएंट जो है इट इज एसोसिएटेड विद लॉ ऑफ फिजिक्स, और इनवेरिएंट जो है इट इज एसोसिएटेड विद अ फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी जो अपना वैल्यू चेंज नहीं करती इन गोइंग फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फ्रेम टू अनदर, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम इनवेरिएंट कहते हैं। और अगर हमारे पास कोई लॉ ऑफ फिजिक्स है कि हम एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसकी फॉर्म चेंज नहीं होती, तो ऐसे लॉ को हम कोवेरिएंट लॉ कहते हैं। So invariant term is used with a physical quantity and covariant term is used with a law of physics. मैं इन चीजों को अब explain करूंगा। Let us consider two frames of reference. Frame S जिसका origin है point O, और ये उसका x coordinate है, ये उसका y coordinate है, this is its y coordinate and this is its z coordinate. तो along its x axis हम दोनों फ्रेम्स की एक ही डायरेक्शन में रखते हैं। सो दिस पॉइंट इज द ओरिजिन ऑफ सेकंड फ्रेम, जिस फ्रेम का नाम हमने s प्राइम रखा है। There is one frame S, there is another frame S prime. तो इसका x coordinate is along the x axis is along the same x axis of the first. This will be it is y axis जिसको हम y prime से denote करते हैं. This will be it is z axis जिसको हम z prime से denote करेंगे. And there is some event happening at point P. Supposing point P is position. Simple we will start with simple thing, the position of a point P जिसकी हमने position measure करनी है in the both frames. अच्छा, जो हमारा पहला फ्रेम है S, इसको हम कहेंगे रेस्ट फ्रेम, it is at rest. अलबत्ता जो S प्राइम है it is the moving frame and it is moving with the velocity v with respect to our rest frame in the x-axis direction, positive x-axis. So this is the situation. So at any instant of time हमने point P की position measure करनी है in the both frames of reference. तो अगर हम पहले फ्रेम यानी रेस्ट फ्रेम से पूछें what is the position, so it says कि this is the position of point P, that is x. So this is the position given by frame S, क्योंकि उसके origin से ये इतना ही दूर है। अगर हम S प्राइम से पूछें तो ये कहेगा कि this is the x position of point P, because इसके origin से ये इतना ही दूर है। So this is the position of point P as given by x prime, and you can easily see that x and x prime they are not equal. x का वैल्यू ज्यादा है और x prime का वैल्यू कम है, तो you can yourself see the position has not got same value in both the frames of reference, hence position is not invariant. इसका वैल्यू हमें सेम नहीं मिलता है। अच्छा, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस S प्राइम है इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, तो हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन है कि डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस जो हम यहां पे लेंगे दैट डिस्टेंस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑरिजिन्स, O से लेके O प्राइम तक जो ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज O टू O प्राइम। स्पीड, अब इस डायरेक्शन में S प्राइम मूव कर रहा है विद द स्पीड v, सो इट विल बी v। एंड सपोजिंग के इनिशियली ये दोनों फ्रेम्स एक ही जगह पे थे, द
origins of the two frames were coincident, और उसके बाद फ्रेम एस प्राइम ने स्टार्ट किया मूविंग इन एक्स एक्सिस विद ए कांस्टेंट स्पीड v, और इसको यहां पहुंचने में टाइम लगता है t, इसको टाइम t लगता है। सो यहाँ पे हम टाइम की जगह लिखेंगे t। सो दैट मीन्स o से लेके o प्राइम तक जो डिस्टेंस है दैट इज vt। So this is the origin O of our rest frame. This is the origin O prime of our moving frame. This is the position P, जिसकी हमने position measure करनी है in both frames. तो इसकी supposing position है X, Y, Z, और टाइम भी हम करें तो दिस इज एज पर फ्रेम एस, और इसी पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम, और टाइम भी हम इसमें लिखेंगे टी प्राइम। Now these are the coordinates according to the moving frame S prime. तो अब हमने इनके दरमियान रिलेशन देखनी है। We have to see what is the relation between X and X prime, Y and Y prime, Z and Z prime, T and T prime. So those equations will be called the transformation equation. तो अगर आप ग्राफ में देखें O से लेके P तक जो डिस्टेंस है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। दैट कैन बी O टू O प्राइम, देन O प्राइम से लेके P तक। लेकिन O से लेके P तक जो डिस्टेंस है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन ऑफ आवर रेस्ट फ्रेम। सो दैट इज द X position is equal to O से लेके O प्राइम तक जो डिस्टेंस है that is the distance traveled by the moving frame and that equals VT plus O प्राइम से लेके P तक जो डिस्टेंस है that is the position of point P as per the moving frame. It is the distance, X distance of point P from origin of the second frame, moving frame. So this is X prime. तो ये जो VT है इसको आप यहां पे ले जाएंगे तो it will become X minus VT is equal to X prime. या हम x प्राइम को पहले लिखें तो we write x prime is equal to x minus vt. So this is the transformation equation. This relates x coordinate of point P in frame S prime with x coordinate of the same point P but in frame S. So this is a transformation equation. Acha, what about y? Chunki there is no motion going along y axis, so we will write that y and y prime they are equal. Similarly, there is no motion going along z direction, so we will write z prime is equal to z. What about t and t prime? चूंकि हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी कर रहे हैं and it depends on the Newtonian mechanics, और न्यूटोनियन मैकेनिक्स में टाइम एब्सोल्यूट होता है, तो जो टाइम मूविंग फ्रेम मेजर करेगा वही टाइम रेस्ट फ्रेम भी मेजर करेगा. सो y प्राइम, z प्राइम और t प्राइम दे विल बी हैविंग द सेम वैल्यू एज मेजर्ड इन द रेस्ट फ्रेम. तो these are the transformation equations. तो एक तो हमें
मिलता है x प्राइम इक्वल्स x माइनस वी टी, और मिलता है हमें y प्राइम इक्वल्स y, z प्राइम इक्वल्स z, t प्राइम इक्वल्स t. So these are the transformation equations. अच्छा, अब अगर हमें inverse transformation चाहिए, यानी we get the quantities measured in moving frame x prime, y prime, z prime, t prime in terms of the quantities measured in the rest frame. तो अब अगर हमें inverse transformation चाहिए, यानी we need to know what is the value of x in terms of x prime, what is the value of y, what is the value of z, what is the value of t. सो लेफ्ट हैंड साइड पे हम वो क्वांटिटीज रखेंगे विच आर मेजर्ड इन द रेस्ट फ्रेम एस, और राइट हैंड साइड पे हम वो क्वांटिटीज रखेंगे विच आर मेजर्ड इन एस प्राइम, द मूविंग फ्रेम. तो इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं x को अपनी जगह पे रखेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट है माइनस वी टी, इसको हम यहां पे ले जाएंगे तो इट विल गेट एडिड. So we will get x prime plus vt. Y, it will be simply y prime. Z, it will be z prime. And t, it will be simply t prime. So these are the inverse transformation equation. So these are the inverse transformation equation. अच्छा, आप देखें कि फ्रेम S में हमें पोजीशन का वैल्यू x मिलता है, लेकिन फ्रेम S प्राइम में हमें x प्राइम का वैल्यू मिलता है x माइनस वी टी, विच इज नॉट इक्वल टू x. x प्राइम इज नॉट इक्वल टू x. तो हमें एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन दोनों फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में एक जैसी नहीं मिलती है. सो वी से that position is not invariant to Galilean transformation, कि हमें पोजीशन का एक ही वैल्यू दोनों फ्रेम्स में नहीं मिलता है. Now let us see the transformation of velocity. Velocity देखने के लिए we will differentiate this equation. So we will differentiate it. So dx prime by dt is equal to dx by dt minus this v is a constant. This is velocity of frame s prime with respect to s, so it is a constant. So differentiate dt by dt. dt by dt, that equals 1. What is dx prime by dt? This is differentiation of position with respect to time in frame s prime. So this is velocity of the object along x axis. इसको हम ux कहेंगे, but ux prime. This is the velocity of object in moving frame is equal to dx by dt, differentiation of x coordinate with respect to time. So this is velocity of object in s frame, और माइनस आएगा v. So this is the transformation for velocity, and you can see the velocity measured in s frame. This is velocity in s frame, and ux, this is velocity in s frame, and they are not equal. तो हम कहेंगे कि हमें velocity का वैल्यू सेम नहीं मिलता है in both frames. So velocity is not invariant. So velocity is not invariant to Galilean transformation. Okay, let us check the transformation of acceleration. So we will again differentiate it. So we will get dux prime by dt is equal to dux by dt minus dv by dt. Now let us see what is this.
This is differentiation of velocity in S frame with respect to time. So this will be acceleration of the object in S frame. इसको हम AX से denote करेंगे. This is differentiation of velocity in S prime frame with respect to time. So this is again acceleration, but this will be acceleration in S prime frame. Is equal to minus this velocity is the velocity of S prime with respect to S, and that's a constant, and that means the differentiation of constant will be 0. So we get AX prime is equal to AX. This is the transformation of acceleration. और चूंकि हमें acceleration का value same मिलता है both in S prime frame as well as S frame. So we say that acceleration is invariant to Galilean transformation. हमें acceleration का value दोनों frames में same मिलता है. तो hence acceleration is invariant to Galilean transformation. Now I shall give you few examples. There are few quantities जिनका वैल्यू सेम रहता है अगर हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन करें. तो ऐसी क्वांटिटीज को हम इनवेरिएंट क्वांटिटीज कहते हैं. तो एक तो आपने देखा एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट. अगर इसको हम मास मल्टीप्लाई करें तो बनता है फोर्स. सो दैट मीन्स फोर्स शुड बी आल्सो इनवेरिएंट. न्यूटन्स के लॉज वो भी इनवेरिएंट या कोवेरिएंट कहेंगे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. बल्कि मैकेनिक्स के जो भी लॉज हैं, ऑल द लॉज ऑफ मैकेनिक्स दे आर इनवेरिएंट या हम कहेंगे कोवेरिएंट टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. लेकिन याद रखें मैं सिर्फ मैकेनिक्स की बात कर रहा हूं, मैं सारी फिजिक्स की बात नहीं कर रहा. ऑल द लॉज ऑफ मैकेनिक्स जो है, जो फॉर्म उनकी हमें एक इनर्शियल फ्रेम में मिलेगी वैसी ही फॉर्म हमें उनकी दूसरे फ्रेम में भी मिलेगी, दूसरे इनर्शियल फ्रेम में मिलेगी. Now then there are few quantities and laws which are not invariant under Galilean transformation. तो उसकी एक एग्जांपल हमने देखी पोजीशन, उसके बाद हमने एक और एग्जांपल देखी वेलोसिटी. अच्छा, अगर वेलोसिटी इनवेरिएंट नहीं है तो इसको हम मास मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा मोमेंटम. तो चूंकि वेलोसिटी इज नॉट इनवेरिएंट तो मोमेंटम भी इनवेरिएंट नहीं होगा. और काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन है 1/2 मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी. तो चूंकि वेलोसिटी इनवेरिएंट नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी भी इनवेरिएंट नहीं होगी. तो all the laws of mechanics are invariant under Galilean transformation. लेकिन जब हम दूसरे ब्रांच ऑफ फिजिक्स पे जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसमें आएगी मैक्सवेल्स इक्वेशंस, उसमें आएंगे लॉज ऑफ ऑप्टिक्स. दे आर नॉट इनवेरिएंट अंडर Galilean transformation. तो दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ Galilean transformation. इसलिए हमें एक नई ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी जिसे हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. वो हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ेंगे, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. तो मैक्सवेल के जो इक्वेशंस हैं, लॉज ऑफ ऑप्टिक्स के जो इक्वेशंस हैं, दे आर इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस